All of you see question number 4th. In any other question, anybody is having any doubt? Beta, please reply. Have you completed homework? Yes, sir. Sorry, question. Okay, so see question number 4th. Question number 4th. The sum of two positive numbers x and y is 50. In question he said sum of two positive numbers x and y, but in bracket it is given that x is greater than y. x बड़ा है और y छोटा है. So first of all what you have to write? First greater number x and smaller number is y. So greater number is x and smaller number is y. In question he said sum of these two number is 50. So x plus y is equal to 50. X plus y answer is 50. This is your equation number 1. Now after that he said difference of their square is 720. Difference करना है. According to question डिफरेंस के लिए क्या लगाएंगे? माइनस साइन लगाएंगे. किनका डिफरेंस करना है? देयर स्क्वायर्स. देयर स्क्वायर मींस उन दोनों नंबर के स्क्वायर का. बट आपको याद रखना है डिफरेंस के लिए हमेशा लार्जर नंबर पहले लिखा जाता है. तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर. तो जब हम ग्रेटर के स्क्वायर में से माइनस करेंगे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, आंसर विल बी रिजल्ट इज 1/2. सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 720. तो इक्वल टू 720 you have to take. Till here anybody is having any doubt? No, sir. No, sir. So remember it, greater number you have to write first. ये याद रखें, ग्रेटर पहले लेना है, उसमें से माइनस करेंगे स्मॉलर नंबर को. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. वैल्यूज पुट करेंगे. ग्रेटर की जगह x स्क्वायर माइनस स्मॉलर में लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 720. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला होता है? x प्लस y x minus y is equal to 720. Now x plus y answer we know. X plus y answer is 50. So remove this x plus y and instead of this we will take 50. Bracket x minus y is equal to 720. Now this 50 is in multiply. When it will come on right hand, it will be divided. X minus y is equal to 720 divide 50. 0 and 0 will get cancelled. Now these two numbers are not divisible with each other. कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए. So this 5 we will bring here in multiply. तो ये हो जाएगा 5 bracket x minus y is equal to 72. On opening this bracket, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे so you will get 5x minus 5y is equal to 72. This is your equation number 2nd and this one is your equation number 1st. Till here anybody is having any doubt? No, sir. Okay. No, sir. Now what will be the next step? आपको मालूम ही है क्या करना है. इन दोनों इक्वेशंस को आपको इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना है और x y आ जाएगा. आगे का काम आप कर सकते हैं अपने आप या करके बताएं? सर कर सकते हैं. अमोल हो जाएगा आगे? Yes, sir. ओके.
Now take the screenshot, then I will explain you next question. All of you take screenshot of this question. After taking the screenshot, please reply. Have you taken or not? Sir, taken. Sir, taken. Okay. Sir, taken. So yesterday, up to which question we had completed? Sir, 6. Question Question number 6. होमवर्क में आपको कहां तक दिए थे? Sir, 8. अप टू 8th ना? Okay. So now question number 9th. 9th देखें. Question number 9. The sum of numerator and denominator of a fraction is equal to 7. Question में बोला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है 7 है. तो आप क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गिवन नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एज्यूम लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, और दोनों को ऐड करके क्या लिखेंगे 7. दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 7. सो लेट न्यूमरेटर इज x, denominator is y, numerator plus denominator is equal to 7. So x plus y is equal to 7 we get. Now after that he said 4 times the numerator. 4 times means multiply numerator. तो 4 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर हो गया. आगे क्या बोला? इज 8 लेस. ये 8 लेस है. किससे लेस है? 5 टाइम्स डिनोमिनेटर से लेस है. दैट मीन्स ये छोटा है और 5 टाइम्स डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है. तो 5 टाइम्स डिनोमिनेटर पहले लिखें. 5 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, उसमें से माइनस करें. इन्होंने बोला था 4 टाइम न्यूमरेटर जो है वो 8 कम है किससे? 5 टाइम डिनोमिनेटर से. यानी ये 5 टाइम डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है और ये नंबर छोटा है. ये 8 बड़ा है इससे और ये 8 छोटा है इससे. यानी दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो 8 का आ रहा है. इसीलिए डिफरेंस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं. तो हमने ये माइनस लगाया है. बड़ा इधर लिखा, माइनस छोटा नंबर इज इक्वल टू 8. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. 5 minus 4x is equal to 8. This is your equation number 2 and this is your equation number 1. ये बताओ किसको समझ नहीं आया? Who is having doubt in this step? बेटा प्लीज रिप्लाई फास्ट. रिप्लाई भी किया. सर एक बार दोबारा से समझा दें. ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. 2 नंबर लिए 5 and 3. 2 नंबर ले लिया. एक है 5 और एक है 3. 5 इज 2 मोर देन 3. आप क्या बोलोगे? 5 जो है 2 बड़ा है किससे? 3 से. आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो 3 इज 2 स्मॉलर देन 5. ये 2 ज्यादा है इससे या ये 2 कम है इससे. यानी दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किसका है? 2 का है. यानी 5 minus 3 क्या होता है? 2 होता है. ये बात समझ आई क्या करा? यस सर. हाँ, 5 2 ज्यादा था 3 से. यानी 5 और 3 के बीच में जो अंतर है वो 2 का अंतर है. अंतर मीन्स डिफरेंस. तो 5 में से माइनस करा 3 और जो डिफरेंस था वो इक्वल टू के बाद आ गया. तो यहाँ भी वही है. यहाँ पे अंतर जो था वो 8 का अंतर आ रहा था. किस में 8 का अंतर आ रहा था? 5 टाइम्स डिनोमिनेटर बोला था,
4 टाइम्स न्यूमरेटर बोला था, तो 5 टाइम्स डिनोमिनेटर ये है और 4 टाइम्स न्यूमरेटर ये है। बड़ा कौन है? बड़ा उसने नहीं बताया, उसने छोटा बताया, तो कोई बात नहीं, छोटा बताया है तो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बड़ा होगा ना। उसने बोला था ये वाला 8 छोटा है, तो फिर ये वाला 8 बड़ा होगा। तो जब ये वाला बड़ा है तो हमने पहले इसको लिखा, इसमें से माइनस करा स्मॉलर वाले को, और कितना है ये छोटा 8, वो इक्वल टू के बाद लिख दिया। अब आया ये स्टेप समझ? यस सर। ओके, उसके बाद वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन बन गई है। नाउ यू आर हैविंग टू इक्वेशंस। अब आपको पता ही है करना क्या है, इसमें आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लगाएंगे। x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको आप और करके लिखें। और पहले x वाला लिखना, -4x + 5y = 8, ये है आपकी इक्वेशन 2। तो अब आप कोफिशिएंट चेक कर लें। x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -4, तो आप इसको 4 बना सकते हैं आराम से। आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 बाय 4। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे। Multiply equation 1 by 4. So when we will multiply equation 1 with 4, यहाँ पे हो जाएगा 4x plus 4y is equal to 28. This is your equation number 3rd. ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3rd। किससे बनी है? फर्स्ट से बनी है, तो फर्स्ट को अभी यूज नहीं करना, अब आपको सेकंड और थर्ड का यूज करना है। अब आप ऑब्जर्व कर लें, कोफिशिएंट ऑफ x 4 लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x 4 लिखा है, दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और साइन कैसे आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं। जब साइन अपोजिट है तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे, जिसमें आपके x वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और y का आंसर मिल जाएगा आपको। आफ्टर दैट y आंसर यू हैव टू पुट इन इक्वेशन 1 में डाले। क्यों? क्योंकि इसमें x के साथ कोई नंबर ही नहीं है, y के साथ कोई नंबर ही नहीं है, दैट मीन्स कैलकुलेशन इज इजी, इसलिए हम इसमें पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। So when we will put this value of y in equation 1, आपको आंसर किसका मिलेगा, x का आंसर मिल जाएगा। अब फाइंड क्या करना था आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला था फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में आप x, डिनोमिनेटर में आप y डालेंगे और वैल्यू रख देंगे, then you will get the answer of fraction. Is this question clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Take the screenshot and one of you send the pics in the chat. अमोल आप भेज दो, पिछले क्वेश्चन की भी भेजो और इसकी भी भेज दो। ओवर? क्लिक कर दीजिए, आप क्लिक कर दीजिए। यस सर। ओके, now come to question number 10th देखें। 10th question, if the numerator of fraction is multiplied by 2, वो कह रहा है न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो।
लेकिन न्यूमरेटर कितना है नहीं बताया, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू एज्यूम लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y। आपने दोनों एज्यूम कर लिए, न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y बनाना, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात चल रही है तो फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन भी लिख ले, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। तो फ्रैक्शन आ गया आपका x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा न्यूमरेटर, फ्रैक्शन में देखो दिस इज द न्यूमरेटर, यानी x को मल्टीप्लाई 2 से करो, और आगे क्या बोला, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर में एक जोड़ दो, डिनोमिनेटर क्या है y, इन दिस वी विल ऐड 1। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने कहा है इट बिकम्स 1, इट बिकम 1, ये इट कौन है, ये इट है फ्रैक्शन। जब हमने न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करी और डिनोमिनेटर में एक जोड़ा तो सॉल्व कर कर फ्रैक्शन 1 आया, तो इक्वल टू में आपको क्या लेना है, फ्रैक्शन में 1 लेना है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2x, 2 into x, 2x is equal to y plus 1 into 1 will be y plus 1. Y will come here. 2x minus y is equal to 1. Equation number 1. Is this equation clear? Yes, sir. Okay. अब आगे बोला है however if the numerator is increased by 4, अब वो एक नई कंडीशन बोल रहा है, नई कंडीशन में कह रहा है if the numerator is increased by 4, न्यूमरेटर क्या है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तो x है, वो कह रहा है x में बढ़ा दो 4, तो जोड़ दिया हमने, और डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, डिनोमिनेटर मीन्स नीचे, नीचे क्या है y, तो वो कह रहा है y मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो आगे क्या हुआ, द फ्रैक्शन बिकम 1/2, तो ये फ्रैक्शन जो बना है अब वो इक्वल है इसके 1/2 के इक्वल है। नाउ ये कौन सा काम है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था क्वेश्चन का, ये सेकंड स्टेटमेंट था, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे आप दिस इज द सेकंड केस, पहला केस ये था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेकंड केस ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 विल कम हियर, 2 ब्रैकेट x plus 4, 2 into y will be 2y, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 2 into x 2x, 2 into 4 8 is equal to 2y। नाउ y we will bring on left hand, आप एक काम करेंगे y को लेफ्ट हैंड पे लेंगे तो 2x minus 2y, 8 we will bring on right hand minus, this is equation number 2। ये वाली इक्वेशन क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे का काम आपको पता ही है क्या करना है, इन दोनों को एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट x के ऑलरेडी क्या है, सेम है, जब ये सेम है तो आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज ही नहीं आ रहा है, दिस इज +2x, दिस इज आल्सो +2x, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तो x तो हो जाएंगे कैंसिल और आंसर आएगा y। आफ्टर फाइंडिंग द आंसर ऑफ y, वो y की वैल्यू आपको पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो आपका आंसर आ जाएगा x का, इसको सॉल्व करके आंसर x का आ जाएगा। नाउ x एंड y दोनों आ गए हैं, क्वेश्चन में इन्होंने बोला था यू हैव टू फाइंड फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y है, लास्ट में आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट,
Sir, taken. Okay. Now come to question number 12. 12th question. Twelfth question is the sum of digit of a 2-digit number. इस क्वेश्चन में एक नई चीज आई है. अभी तक हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेते, बट इन दिस क्वेश्चन आपको एक नई चीज मिली है. नई चीज है 2-digit नंबर. तो 2-digit नंबर आप एक एग्जांपल ले लें. जैसे मैंने एक नंबर लिखा 53. सपोज आई हैड रिटन 1 2-digit नंबर, दिस इज 53. तो ये जो लास्ट डिजिट होती है, दिस डिजिट इज कॉल्ड यूनिट प्लेस डिजिट. दिस लास्ट डिजिट इज नोन एज यूनिट प्लेस डिजिट, जिसको आप वंस बोलते हो. वंस, टेंस, 100, 1000, लाइक दिस. यू आर रीडिंग ना, आप इंडियन सिस्टम में चेक करते हो. तो ये जो वंस होता है इसको हम यूनिट प्लेस डिजिट बोलते हैं. और ये वाली कौन सी होती है? टेंस प्लेस डिजिट. तो यूनिट प्लेस डिजिट लास्ट वाली होती है, 10 प्लेस डिजिट होती है जो स्टार्टिंग में दी गई है यहाँ. अब 2-digit नंबर के लिए एक फॉर्मूला है. 2-digit नंबर का फॉर्मूला होता है 10 into 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2-digit नंबर, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था. 8th क्लास में भी पढ़ाया था आपको ये. तो 2-digit नंबर इज 10 into 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए 2-digit नंबर. अब ये फॉर्मूला कैसे बना है? आप इसी एग्जांपल को ले लें 53. 53 इज ए 2-digit नंबर. आप इसको अगर बनाना चाहेंगे 53 को, तो आप क्या करेंगे? 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और उसके बाद 3 ऐड करेंगे. सो 5 into 10 विल बी 50 और 50 प्लस 3 बन जाएगा 53. तो 2-digit नंबर कैसे बना है? 2-digit नंबर इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई 5 से करी, और 5 कौन सी डिजिट थी? 10 प्लेस डिजिट. तो फॉर्मूला बना 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस डिजिट, ये 10 प्लेस डिजिट है, प्लस 3 कौन सी डिजिट है? 3 इज द यूनिट प्लेस डिजिट. तो 10 into 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, ये फॉर्मूला बना है. समझ आया? Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this formula we have to use in question number 12. अब कैसे करेंगे देखो. टू डिजिट नंबर में दो प्लेस है, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस. आपको दोनों में से कोई सी भी प्लेस नहीं पता, क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर है. सो यू हैव टू एज्यूम लेट digit at tens place is x and digit at unit place is y. मान लेते हैं 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो x है और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो y है. अब आप नंबर लिखेंगे. नंबर जो है 2-digit नंबर 10 into 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, यानी कि 10 into x प्लस यूनिट प्लेस y. तो ये आपका 2-digit का नंबर आ गया 10x प्लस y. तो ये आपने एक नंबर बना लिया है 2-digit का फॉर्मूले के थ्रू 10x प्लस y. अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, ये पढ़ते हैं. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 5. इसने बोला था डिजिट्स का सम 5 है. कौन सी डिजिट्स? 10 प्लेस और यूनिट प्लेस, इनका सम 5 है, यानी x और y जोड़कर 5 है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू
5, that means x plus y is equal to 5। तो x plus y is equal to आपका आ गया 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे बोला इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड, अगर हम डिजिट को पलट दें, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था 53 का। 53 में 3 कौन सी प्लेस की डिजिट थी? यूनिट प्लेस। 5 कौन सी प्लेस की डिजिट थी? टेंथ प्लेस। और फॉर्मूला जो बना था वो बना था 10 into 5 plus 3। 53 के लिए जो हमने फॉर्मूला तैयार करा था वो 10 की मल्टीप्लाई 5 से करी थी प्लस 3। क्यों 5 से करी थी? क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस से होती है। अब वो कह रहा है डिजिट रिवर्स हो चुकी है, डिजिट पलट दी। 53 की जगह अब तुम्हें 35 लेना है। 53 की जगह 35, तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या बदल जाएगा? फॉर्मूले में हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी और जोड़ना पड़ेगा 5। तो 10 into 3 plus 5 हो जाएगा 35। तो जब हमने डिजिट को रिवर्स करा, 53 से 35 बनाया, तो आपने ऑब्जर्व करा जहां पे 10 के साथ 5 लिखा था वहां पे अब 10 के साथ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और 3 कौन सी प्लेस की डिजिट थी? यूनिट प्लेस की। तो फॉर्मूला भी बदल गया, 10 into यूनिट प्लेस आया और प्लस 10 प्लेस आया। तो फॉर्मूला आपका बदल चुका है, जबकि फॉर्मूले में 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस से होती है। लेकिन जब हम रिवर्स कर देंगे तो फॉर्मूले में भी रिवर्स हो जाएगा। फॉर्मूले में 10 into 10 प्लेस ना लेकर के आपको लेना पड़ेगा 10 into यूनिट प्लेस। ये बात समझ आई? यस सर। तो आपको लिखना क्या है? इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट को हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। किसका फॉर्मूला? 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला। तो एक नंबर तो यहां आया था हमारे पास, ये जो नंबर था ये ओरिजिनल नंबर था। इसको आप लिखोगे दिस इज द ओरिजिनल नंबर। अब जो रिवर्स करके नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर नहीं होगा, वो होगा न्यू नंबर। न्यू नंबर, तो न्यू नंबर का फॉर्मूला आपको लिखना है 10 into यूनिट प्लेस प्लस 10। फॉर्मूला चेंज हो गया है। क्यों? डिजिट रिवर्स होने के कारण। यहां देखो फॉर्मूला क्या लिखा था? 10 into 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। लेकिन अब डिजिट रिवर्स हुई है तो फॉर्मूला भी बदलेगा। 10 into 10 प्लेस की जगह यूनिट प्लेस हो जाएगा, प्लस यहाँ यूनिट प्लेस था तो यहाँ ले लिया हमने 10 प्लेस। अब आप वैल्यू डालें इसमें, 10 into यूनिट प्लेस y प्लस 10 प्लेस x। तो इसको जब सॉल्व करा तो आंसर आया 10y प्लस x। यहां तक बताओ किसको समझ नहीं आया? सर एक बार वापस से समझा दीजिए। ओके, ये ओरिजिनल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो ये 2 डिजिट का जो नंबर आएगा ये नंबर भी क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर आएगा। तो हमने ये फॉर्मूला याद रखना है 10 into 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, जिसमें ये दोनों आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि डिजिट पलट दो। डिजिट पलट दो मतलब 53 है तो आप 35 बना दो। तो जब 53 को 35 बनाएंगे तो इस फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके फॉर्मूले से आंसर तो 53 बनेगा, 35 बन ही नहीं सकता। इस नए ओरिजिनल वाले फॉर्मूले से तो 53 ही बनेगा, 35 नहीं बन सकता। इन ऑर्डर टू मेक इट 35 आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। 35 बनाने के लिए 10 into 3 plus 5 करना पड़ेगा, यानी 10 into 10 प्लेस ना लेकर के आपको यूनिट प्लेस करनी है। मतलब इनको आपस में क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। तो जो नया फॉर्मूला बनेगा रिवर्स करने के बाद वो बनेगा 10 into, रिवर्स करने के बाद ये पलट जाएंगे
तो 10 इंटू यूनिट प्लेस प्लस 10 प्लेस, और इसमें आप वैल्यू डाल देंगे जो आपकी 10 प्लेस की है और यूनिट प्लेस की है यहाँ पर, तो ये आपका नया वाला नंबर आ जाएगा। ओके यस सर। ओके नाउ तो अभी हमने क्वेश्चन में कहां तक रीड करा था? अभी हमने रीड करा था डिजिट्स आर रिवर्स्ड। रिवर्स के बाद अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि है क्या, अब पढ़ लेते हैं रिवर्स के बाद उसने कहा क्या है। उसने बोला है इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड द नंबर इज रिड्यूस बाय 27। क्या बोला उसने? उसने बोला जब आपने डिजिट पलटी थी तो नंबर जो आया वो रिड्यूस मीन्स कम आया। कितना कम आया? 27 कम आया। किससे कम आया? जो ओरिजिनल वाला नंबर था उससे 27 छोटा आया। ओरिजिनल नंबर तो ये है, ये ओरिजिनल नंबर है जो पहले था। फिर हमने डिजिट को पलटा, जब डिजिट को पलटा तो नया नंबर ये वाला बना। ये जो नया नंबर आया ये 27 छोटा आया है। जब ये 27 छोटा है तो फिर ओरिजिनल वाला क्या होगा? 27 ज्यादा होगा। ये चीज छोटी है तो ये वाली चीज क्या होगी? बड़ी होगी। यानी दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है? 27 का है डिफरेंस, 27। सो डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू नंबर क्या है? 27 है। ये डिफरेंस समझ आया? क्या बताया मैंने? डिफरेंस 27। डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। ओके यस सर। तो डिफरेंस के लिए रूल आपको पता है, डिफरेंस के लिए बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखते हैं। अब ओरिजिनल बड़ा है या न्यू बड़ा है? क्वेश्चन में उसने साफ साफ क्या है, जब हमने डिजिट पलटी थी तो नंबर छोटा आया था, कम आया था, तो ये तो बड़ा है ही नहीं, बड़ा तो ओरिजिनल है। तो आपको क्या लिखना है? ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर, दोनों के बीच में डिफरेंस 27 था। ओरिजिनल ये रहा, इसको आप ब्रैकेट में लिखे 10x प्लस वाई माइनस न्यू, न्यू ये रहा 10y प्लस x, ब्रैकेट में ही लेंगे आप इसे, इज इक्वल टू 27। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट 10x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस 10y माइनस प्लस माइनस x इज इक्वल टू 27। Now this term and this term both are having x variable, तो इन्हें सॉल्व करें। 10x minus x will become 9x plus y minus 10y will become minus 9y is equal to 27। Now you will observe here that all these three terms are divisible by 9। ये सारे 9 के टेबल में आते हैं, तो आप कॉमन भी लेके कर सकते हैं। कॉमन लेंगे तो उसके बाद 9 को कहाँ ले आएंगे? डिवाइड में ले आएंगे। और सेकंड मेथड है आप इन सबको ही डिवाइड कर दे, किससे? 9 से। डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड। So when we will divide by 9 on both sides, this will become x, this will become y. When we will divide it with 9, 3. So x minus y is equal to, this is your equation number 2। ये इक्वेशन 2 आ गई, तो फर्स्ट कहां पर है? ये रही, x plus y is equal to 5। Now you have to solve these two equation। आपको x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। Okay, so after solving it you will get x answer and y answer। अब फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर, वो कह रहा है नंबर फाइंड करो। कौन सा नंबर? 2 डिजिट वाला नंबर, लेकिन नया वाला नहीं फाइंड करना, ओरिजिनल जो था। तो आपको ये ओरिजिनल नंबर लिखना है। ओरिजिनल नंबर इज 10x plus y, then after that we will put the value of x and y। आप यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, you will get the answer। ठीक है?
जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। Sir, taken. Okay. Now come to question number 13. Question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा थोड़ा सेम है आपका 12 क्वेश्चन की तरह। देखिए क्या करना है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7। 2 डिजिट वाला नंबर है, तो लेट डिजिट एट 10th प्लेस इज x, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज y। मान लेते हैं डिजिट एट 10 प्लेस x है, यूनिट प्लेस y है। ओरिजिनल नंबर आएगा 10 इंटू 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। ये फॉर्मूला होता है ओरिजिनल नंबर का। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज 10x प्लस y। दिस इज द ओरिजिनल नंबर। और क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस में कहा है जो सम है डिजिट्स का वो 7 है, तो 10 प्लेस डिजिट सम बोला है तो प्लस यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 7। x और y का सम क्या है 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन में बोला इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, वही बात आ गई जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थी। आप भी हेडिंग डालें, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स। अगर डिजिट रिवर्स होंगी तो फॉर्मूला बदल जाएगा। अब नंबर जो आएगा वो न्यू नंबर आएगा, नया नंबर। 10 इंटू 10 प्लेस होता है, लेकिन हम 10 प्लेस नहीं लेंगे, हम लेंगे यूनिट प्लेस और प्लस करेंगे 10 प्लेस। तो आंसर आएगा 10 इंटू यूनिट प्लेस इज y प्लस x, यानी 10y प्लस x इज द न्यू नंबर। तो इन्होंने रिवर्स करने के बाद क्या कहा वो पढ़ते हैं। न्यू नंबर डिक्रीज बाय 2। न्यू नंबर डिक्रीज बाय 2 मतलब 2 घटा दो, तो घटा देते हैं 2, माइनस कर दिया 2। आगे क्या बोला, इक्वल ट्वाइस द ओरिजिनल। इक्वल लगाया, ट्वाइस के लिए 2 मल्टीप्लाई करा और फिर क्या लिखा ओरिजिनल। ये स्टेटमेंट समझ आ गया सबको। Yes, sir. Now we will put the values. New number 10y plus x minus 2. 2 multiply original number we have to write in the bracket. Original number is 10x plus y. Now 10y plus x minus 2 is equal to 2 into 10x 20x. 2 into y 2y. Now x and y terms we have to take on left hand side and constant term on right hand side. So 10y plus x minus 20x, this will come on left hand, minus 2y, minus 2 will go on right hand, so this will become plus 2. Now 10y minus 2y हो जाएगा 8y plus x and minus 20x minus 19x is equal to 2. Or first of all we will write x variable x minus 19x plus 8y is equal to 2.
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दीज टू इक्वेशंस यू हैव टू सॉल्व, और इसको सॉल्व करके आप फाइंड करेंगे x एंड y वैल्यू. देन आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, ओरिजिनल नंबर में आप पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. Okay. Now take the screenshot and I will take your attendance. All of you take the screenshot fast. Sir, taken. Okay. Now all of you be quiet. I am taking your attendance. So your homework is you have to complete up to question number 14. All the students have to complete up to question number 14. The remaining questions I will explain you in the next class. Okay. Now I am taking your attendance.